Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today, in the series of 11th Commerce OCM, we'll continue with our chapter number 5, that is Forms of Business Organization Part 1. Before starting today's video, let us quickly recall what we have learned till now. We started with introductory video, then we learned about the topic sole proprietor. In that sole proprietorship, we learned about meaning, characteristics, advantages and disadvantages. Then we have discussed about firm business managed by HUF, that is Hindu Undivided Family. We discussed about the meaning, concept and characteristics. And in the last video we discussed about partnership, meaning and characteristics. So today we will start with advantages of partnership. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या हो सकते हैं. स्टार्टिंग विद द एडवांटेजेस फर्स्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज easy and less expensive process of establishment. The process of establishing a partnership firm is easy and less expensive. In establishment process, one does not require to pass through a special process of law. According to the act, registration is not compulsory but advisable. दो चीजें हैं कि प्रोसेस जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ही कम एक्सपेंसिव है. और रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है लेकिन एडवाइजेबल है कि आप रजिस्टर्ड करा लीजिए पार्टनरशिप फर्म को. ओके. नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट. अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, द पार्टनरशिप फर्म गेट्स द बेनिफिट of the knowledge, intelligence, skill and experience of many partners. As the management is in the hands of partners, they take personal interest and care in the management. As there is direct control of partners over employees, the firm is managed efficiently. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही ओनर है, एक ही मैनेजर है, वही सब मैनेज करेगा. लेकिन यहाँ पे हमारे पास टू और मोर देन टू पर्सन है, तो पॉसिबिलिटीज है कि सबकी इंटेलिजेंस, स्किल, एक्सपीरियंस अलग अलग पार्टनर्स का काम आ सके. ओके. तो जो फर्म है वो इजीली मैनेज और अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गुडविल, क्रेडिट वर्दीनेस. As every partner has unlimited liability, other traders do not hesitate to sell goods on credit or lend finance to the firm. Creditors can realize their debts from any partner, even from his private properties. Thus, in comparison to sole proprietorship, the possibility of increasing the credit worthiness of firm is more. लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो कोई भी क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा या फाइनेंस या फंडिंग करने के लिए रेडी होगा. क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि किसी भी पार्टनर्स की पर्सनल एसेट भी सेल करके एक बार रिकवरी की जा सकती है. दैट इज वाई गुडविल और क्रेडिट वर्दीनेस पार्टनरशिप फर्म की ज्यादा होती है. ओके. नेक्स्ट इज मोर कैपिटल. इन द पार्टनरशिप देयर आर टू और मोर पार्टनर्स, so more capital can be raised, and in future when business develop it will require more capital. Then by admitting a new partner, additional capital can be realized. मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनर होते हैं तो ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में हम ला सकते हैं. और अगर फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ी कैपिटल की तो उस टाइम हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करके, नए पार्टनर को इंक्लूड करके और कैपिटल रेज कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. Advantages can be derived from the different skills and abilities of the partners of a firm. By allotting the work to partners according to their abilities and experience, the advantages of division of labor can be obtained. सेम वही कैसे कि अलग अलग पार्टनर्स को उनके एक्सपर्टाइज के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से अगर वर्क अलॉटेड किया जाए तो सारे वर्क के चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज है कि अच्छी तरीके से होंगे. तो डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज भी हमें मिल सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म को मिल सकता है. नेक्स्ट इज proper decision. In partnership firm, before taking any decision for any matter, discussion and thinking process takes place. Opinion of each partner is noted and only then in the interest of business a decision is taken by consent. As the benefit of all knowledge and experience of all partners available, possibility of wrong decision is very less. पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजन किसी भी मैटर्स पर लेने से पहले सबसे डिस्कशन होता है, सबका ओपिनियन, थिंकिंग प्रोसेस जाना जाता है. सारे पार्टनर्स का ओपिनियन नोट करके जो बिजनेस के लिए सबसे यूजफुल, सबसे बेनिफिटेबल डिसीजन होता है उसको लिया जाता है. और इसी वजह से गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत कम है. पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन इज वेरी लेस. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एग्रीमेंट. एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है.
In this agreement, required changes can be made according to the changing environment. The necessary changes can be easily made in the management and in the structure of fund. पार्टनरशिप पूरा वॉलंटरली है. बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, किसी भी जरूरत के हिसाब से अगर आपको उसमें चेंजेस करने हो तो आप इजीली चेंजेस कर सकते हो, इसलिए हम उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल है. पार्टनरशिप इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द interest of minority. Usually in all partnership firm, all type of work is carried out with the consent of all partners. ज़्यादातर सारी पार्टनरशिप में कोई भी काम करेंगे तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ किया जाता है. अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं कर रहा तो वो काम नहीं किया जाएगा. ओके. और कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप क्लोज करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन के लिए पूछ सकता है. इसलिए अगर कोई पार्टनर छोटे से छोटे शेयर के लिए भी है तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा. क्लियर. Next is direct relation with customer. Like sole proprietor, partnership can also change can be made easily as there is direct contact with the customer. Customer से direct contact, employee से direct contact रहता है, तो कोई changes accordingly करने हो तो हम कर सकते हैं easily. Okay. Decentralization of economic power. In partnership firm there are more than 2 partners. Economic power is divided among all the partners. किसी एक के हाथ में पूरी पावर नहीं होती, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड रहती है. एंड लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज लेस. जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, और पार्टनर्स में डिवाइड होने के बाद पार्टनर्स को टैक्स पे करना है तो इनकम टैक्स का बर्डन भी कम हो जाएगा जैसे जैसे प्रॉफिट डिवाइड होता जाएगा. क्लियर. सो ये तो हमारे एडवांटेजेस हो गए. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप. तो फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड कैपिटल. Considering the development and big size of modern industries and trade, the capability to raise large capital by partners is limited. There is less scope for partnership firm to engage in large scale business activity due to limited capital. किसी भी फॉर्म में एक पार्टनर्स बहुत ही लिमिटेड होंगे, तो लिमिटेड पार्टनर्स के साथ बहुत ही बड़ी कैपिटल, ह्यूज कैपिटल, लार्ज कैपिटल रेज करना बहुत डिफिकल्ट है, लिमिटेड है. इसलिए एक पार्टनरशिप फर्म की एक ये डिसएडवांटेज है कि बड़े कॉर्पोरेट्स की तरह या बड़ी बड़ी कंपनीज की तरह लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज वो नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. इन अ पार्टनरशिप फर्म लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड. मीन्स कोई भी पार्टनर कुछ भी करे लेकिन सारे पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके. और उसमें भी है कि अगर एक पार्टनर की पर्सनल एसेट इनसफिशिएंट है किसी डेट को पे करने के लिए, तो बाकी के पार्टनर्स की पर्सनल एसेट बेच के वो डेट पे करना पड़ेगा. सो ये एक डिसएडवांटेज है पार्टनर्स के लिए. क्लियर. थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट. 2 या 3 या 4 पार्टनर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिसएग्रीमेंट आ जाता है. चांसेस है कि आपके ओपिनियन मैच नहीं करेंगे, आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होगा, और ऐसा होगा तो मैनेजमेंट प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाएगा, यूनिटी नहीं होगी. ओके. तो डिसयूनिटी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिससे डिसएग्रीमेंट हो सकता है पार्टनरशिप में. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग सीक्रेट. किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीक्रेसी मेंटेन करना. लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा कि जितने पार्टनर्स होंगे उन सबको बिजनेस डिसीजन के बारे में पता होगा. सबको पता होगा कि हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं, कहाँ से सेल कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट क्या है, हमारे बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या है. तो जो डिसीजंस हैं, जो बिजनेस सीक्रेट है उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है. मेंटेनिंग ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स आर डिफिकल्ट. नेक्स्ट इज शेयर ट्रांसफर डिफिकल्टी. हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया तभी किया था कि एक पार्टनर उसके शेयर्स किसी के नाम पर भी ट्रांसफर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री करें. तो अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं करते तो शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकेगा. ओके. अगर सब एग्री करते हैं तो ही शेयर ट्रांसफर होगा. तो सबको एग्री करना एक डिफिकल्ट टास्क है, तो देयर इज अ डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर. Next is delay in decision making. According to the law,
Each partner can take part in management of the firm due to internal disputes and disagreement among partners. Decision taking process is delayed. अब लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट है, और अगर डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट हुए, डिसीजन टेकिंग प्रोसेस डिले हो जाएगी और मैनेजमेंट जो है वो वीक हो जाएगा. सो इससे इंटरनल डिस्प्यूट्स भी बढ़ जाएंगे और पार्टनरशिप खत्म करने का टाइम भी आ सकता है, चांसेस भी आ सकते हैं. एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज लाइफ स्पैन. किसी की डेथ, इंसॉल्वेंसी, मेंटल बैलेंस लूज करना, ऐसे कोई भी रीजंस की वजह से आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा, पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी और फिर न्यू पार्टनरशिप अगर आप चाहो तो बनानी पड़ेगी. लेकिन एक बार तो पार्टनरशिप आपकी एंड होगी और होगी ही. क्लियर? सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस, किसी भी रीजन से आपकी पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. So this was today's topic. Hope you guys are able to understand. In the next session of the video, we'll discuss about types of partner and types of partnership. If you have any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.